ठीक है, आई एम स्टिल गिविंग यू गाइस अ बिट ऑफ आइडिया, ठीक है ना, स्पेशली फॉर मरियम एंड यूसुफ. You guys have any idea like about this particular chapter? The only thing I know is ligands. The only thing you know is ligands, so that's fine. ठीक है, so there are few things जिसके बारे में at least terminologies आपको पता रहना चाहिए. ठीक है, so first of all we have the central metal atom. Central metal atom को हटाते हैं. You will see two different types of atoms or molecules here. A group of atoms. One will be inside the square brackets, and another will be outside. So first of all, we will see what is on the outside. On the outside, we are having chlorine. Okay. So this chlorine, whatever is outside the square bracket, that is known as counter ion. Whatever is outside, it is known as counter ion. The terminology is very similar. When we come inside the square brackets, first of all, you will identify the metal, and the metal will be on the leftmost side. So this is cobalt. Cobalt is the metal. Okay? This is cobalt. Cobalt is the metal. We also call this central metal atom. Now, whatever else is present inside the square brackets, that is a ligand. So here we have two. Now, अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, Cl2 है या दो Cl है ना, तो अलग अलग चीज होते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल, if I write H2O, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन जो है आपके पास इस तरह से, मतलब दो हाइड्रोजन है और वो ऐसे ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं. ठीक है ना, वो मतलब तो नहीं होता है. मतलब क्या होता है, मतलब होता है ऑक्सीजन इसके साथ दो हाइड्रोजन कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं, राइट. So similarly, when we talk about Cl2, it is not exactly Cl2 जो Cl2 gas होता है, it is rather the two hydrogen molecules. Sorry, hydrogen molecules बोल रहे हैं. It is rather the two chlorine atoms as we are having in the water molecule. जब हम H2O में, when we talk about the H2 in the H2O, it is not hydrogen gas, ना H2 gas नहीं है यहाँ पे. These are hydrogen atoms which are connected to oxygen. ठीक है, तो पार्कर एंड यूसुफ इतना समझ में आया आपको लिगेंड्स के बारे में कम से कम? Yes sir. Yes sir. Okay, ठीक है ना. Similarly, the ligands can be monoatomic. जैसे क्लोरीन है, दो क्लोरीन एटम्स हैं, तो एक क्लोरीन क्या है, लिगेंड है, दूसरा क्लोरीन भी क्या है, ये भी लिगेंड है. उसी तरह से ligands can also be group of atom. For example, here we have NH3. ठीक है, here we are having NH3. So it is a group of atoms. In NH3 we have nitrogen, 3 hydrogens. This is a lone pair. Now this lone pair is what it is going to be donating the electrons. ठीक है, तो NH3 भी क्या है इस तरह से, NH3 is also a ligand. अब आप लोग फिर अभी तक प्रश्न पे आए नहीं है यार, एक सेकंड में एक बार कंफर्म कर लेते फिर आप लोग करना चाहिए. वेट करें. नॉमेनक्लेचर के बारे में आप लोगों को कुछ आइडिया है? यूसुफ एंड इरम, नहीं इरम को तो होगा. यूसुफ एंड मरियम पार्कर, नॉमेनक्लेचर, आई मीन अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नॉमेनक्लेचर. Yes sir. No sir. I know. मरियम पार्कर आपको भी आइडिया है? No sir. है ना, चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग कुछ, अच्छा चलिए इसी का नॉमेनक्लेचर कीप करते हैं. Here we are having a compound, इसी का नॉमेनक्लेचर करते हैं. What will be the name of this particular coordination compound? क्या हो पाकर, अभी तो आपने कहा तो नॉमेनक्लेचर आता है. Sir, I said no. अच्छा तो सबसे जोर से बोले. यूसुफ आपने कहा, क्या कहा था, यस कहा था, नो कहा था? Yusuf? I said yes sir. अच्छा ठीक है. Iram, you can also do the nomenclature, right? Is that right sir? In the chats. No, you have to send it to Salim. Oh. You have to, I think you have sent it to Learnivio. Iram? Not really sir. Not really. टेस्ट में कैसे किया था आपने? आपको जो स्कूल में टेस्ट हुआ था
वो हाँ थोड़ा आता है तो मैं भूल गई। थोड़ा आता है या फिर आपके बगल वाले को आता था थोड़ा? हाँ गाइस। इरम, आपको आता है, आपके बगल वाले को आता था स्कूल में? ट्राई करें, इसको ट्राई करें अगर आपको आता है तो। यूसुफ, यू हैव टू सेंड इट टू सालिम, नॉट टू लर्निंग। नहीं 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 नहीं, यूसुफ ऐसे ऐसा नहीं। ठीक है यूसुफ, आप मत ट्राई करें, आप मत ट्राई करें अभी। Is that wrong, sir? हाँ, इट इज रॉन्ग। Okay. इरम, टेक 2 minutes। आई थिंक कृष्ण पे इज नॉट गोइंग टू ज्वाइन, इतना लेट नहीं करती हूँ। इरम, प्लीज सेंड मी द आंसर इफ यू आर डन। Yes, sir. Just a minute. नहीं नहीं यूसुफ, आपको तो हमने मना कर दिया ना। पार्कर, अच्छा पार्कर ने भी ट्राई किया। अरे भाई, जब पार्कर आप लोग को आता है तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? हाँ पार्कर। Sir, I wrote on what I remember in class. ठीक है। हाँ सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने पता नहीं कैसे सही नहीं कहा। ऑक्सीडेशन स्टेट आई विल हैव टू सी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट राइट। बाकी सब कुछ ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट सही नहीं है। Here I'm just waiting for you. Sir, oxidation state is 3, right? Your oxidation state is correct. Yeah, oxidation state is correct. Yusuf, now yours is correct, but it is not complete. अभी भी कुछ मिस्टेक्स हैं यहाँ पे। इरम, आपका आंसर नहीं आया अभी तक? इरम, So check it. सॉरी। अच्छा Can you व्हाट्सएप send में भी? it? अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप में नहीं नहीं, सॉरी, आई वाज लुकिंग एट द जूम चैट। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको चेंज नहीं करना। स्कूल में आप लोगों को क्लोरो लिखाया गया है या क्लोरिडो लिखाया गया है? अच्छा, सांसिंग। Chloro. क्लोरो लिखाया है इरम? है एनसीईआरटी में, लेकिन क्लोरिडो ही है। क्लोरो भी यूज कर सकते हैं बट अब जो है नए नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इट इज गोइंग टू बी क्लोरिडो। जस्ट गिव मी अ सेकंड। लास्ट आई चेक इट वाज, हाँ पार्कर, आपको तो समझ में आया क्लोरिडो है। क्लोरिडो ही दिया हुआ है, ठीक है। इरम, आप एक बार चेक कर लेंगे अपने टीचर से कि एनसीईआरटी में मैम जहां पे भी सीएल के बारे में है इट इज क्लोरिडो। Okay, sir. ओके।
वही हम बोल रहे थे ना, आईपैक का एक रिकमेंडेशन है कि क्लोरिडो ही लिखा जाए। देखिए जरा, this is there from NCERT. The 2004 IUPAC draft recommends recommends that anionic ligands will end with IDO. ठीक है, किससे एंड करना होगा? IDO से, so that chloro would become chlorido. ओके, वो IDO ही है। चलिए ठीक है, नाउ लेट अस सी, थोड़ा हम बता देते हैं आप लोगों को। इरम का ऑक्सीडेशन स्टेट में दिक्कत है? सी, नो 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 माय बैड, इरम आपका नहीं, मरियम पारकर का। इरम बोलेगा सर मेरा ठीक है। पारकर, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे देखिए दो क्लोरीन है ना, सो क्लोरीन विल बी नॉट एज क्लोरीन, इट इज क्लोराइड, राइट? क्लोराइड अगर है तो इट विल बी हैविंग -1 ऑक्सीडेशन, -1 इसका चार्ज होगा। तो दो क्लोरीन है तो -1 × 2, और यहाँ पे से क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी अच्छा, NH3 अमोनिया, अमोनिया इज अ न्यूट्रल स्पीशी, राइट? इफ इट इज न्यूट्रल तो इसका 0 हो जाएगा, ×4 है तो ×4 कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपके पास 1 क्लोरीन है, सो -1 × 1, और आप कोबाल्ट का लेंगे X। सो नाउ इफ यू कैलकुलेट इट लाइक दिस, X प्लस -1 × 2 प्लस 0 का 0 हो जाएगा, प्लस -1 × 1 हो जाएगा -1। दिस होल थिंग inside the square bracket, outside the square bracket, the whole thing is what? It is not having any charge, so I will equate this to 0. So I will get this as X -2 -1 is equal to 0. So X -3 is equal to 0. अच्छा, आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया क्या पार्कर? Yes, sir. Where did you do the mistake? Why? How did you get +1 by the way? Sir, I didn't calculate it. अच्छा अच्छा, आपने ऐसे ऊपर ऊपर से कर दिया, ठीक है। आपको ये पता है ना, हो जाएगा ये आपसे? Yes, sir. ठीक है, अब देख लेते हैं जरा। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नेम द लिगेंड्स। लिगेंड में सबसे पहले अगर हम बात करें लिगेंड्स में, लिगेंड्स में व्हाट डू आई हैव Cl, 2 क्लोरीन है मेरे पास, और आई हैव 4 अमोनिया, 4 NH3 है, ठीक है। तो 2 क्लोरीन यानी कि आई विल बी हैविंग क्लोरिडो इज माय लिगेंड, क्लोरिडो इज माय लिगेंड, एंड डाई, राइट? डाई इज माय नंबर, मतलब 2 क्लोरीन है तो उसके लिए डाई आ गया, यहाँ पे आ जाएगा टेट्रा, और फिर उसके बाद जाएगा अमाइन में A MM INE, ठीक है ना? इफ यू आर नॉट राइटिंग डबल एम तो उसमें मिस्टेक, मतलब मार्क्स कट जाएंगे आपके पास, ठीक है। एंड देन वी हैव द सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज द कोबाल्ट, क्या है? कोबाल्ट। और उसके बाद काउंटर आयन जो है हमारे पास, दैट इज क्लोराइड, ठीक है, इट इज क्लोराइड। यूसुफ आपको हम बता देंगे वो कोबाल्टेट जो या फिर क्लोरेट जो भी आपने लिखा ना, वो कब यूज होता है, आई विल टेल यू, डोंट वरी। नाउ आई कैन राइट। अच्छा, लिगेंड्स में आपको चूज करना रहता है व्हिच वन आर यू गोइंग टू राइट फर्स्ट, whether I am going to write about the tetramine or dichlorido. So please see here, आप इससे नहीं करेंगे, like you are not going to just, I mean you are not going to judge the arrangement using this numbers, di और tetra number है, these are not the names of ligand, the name of ligand start from here, C or A, so obviously A comes before, that is why we are going to write about the amine first। ये हो जाएगा आपके पास टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट, कोबाल्ट में आ जाएगा 1 2 3, और उस पर स्पेस देखिए क्लोराइड। मेक सेंस एवरीवन? यूसुफ, इरम, मरियम? Yes, sir. Yes. ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन। आई विल गिव यू एन एग्जांपल जिसमें आपके पास वो क्लोरेट मतलब जो कोबाल्टेट इस्तेमाल होता है, वो हम एग्जांपल दे देंगे आप, ठीक है? प्लीज राइट दिस डाउन।
Raise your hand once you're done. Also, guys, I have started the focus mode. Can you please turn your videos on? Sir, I have a question. Yeah, tell me. Sir, if the oxidation state is a negative, how will we write that? It will never be negative. So it's always going to be positive. Yeah, a positive or zero. Okay. If it is zero, you just write zero in the brackets. Iram and Yusuf waiting for you guys. Can you please have your videos on? Thank you, Iram. And raise your hand once you're done, guys. And write another question. Sir, Tell me. sir, while naming, there should be no space in between, right? There will be space between the square bracket thing and then the chloride thing. जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड लिखते हैं तो कहते हैं सोडियम और क्लोराइड के बीच में स्पेस रहता है, ठीक है? But between ligands and central metal atom, there will be no space. Okay. So as you already know, ligands and the central metal atom, this will be in the complete, like without any spacing. But you will give a space when you have to write the counter ion. So this will start with mercury, then space, you have to start with the ligands. G. Do you guys know what to call SCN? What is the name of this ligand? Hiram, Yusuf? Thiocyanate. Thiocyanate. ठीक है, thiocyanate, and you have to write like this: thiocyanate, and then you have to write
बिकॉज हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव S ना, तो आपको ऐसे S लिखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू शो दैट द बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस थ्रू S। यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन इज एन एम्बिडेंटेट, लेकिन बोथ ऑफ दीज कैन डोनेट, ठीक है। हम आपको बताएंगे क्या फर्क होगा। दिस कंपाउंड एक आपके पास यहाँ पे थायोसाइनेटोन, अगर आपके पास सेम चीज आ जाए कुछ इस तरह से HE कोबाल्ट एंड यू हैव NCS, ठीक है, तो NCS भी थायोसाइनेटो होगा, बट इट विल बी थायोसाइनेटो N, नॉट S, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बिकॉज हियर द बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस थ्रू नाइट्रोजन एटम एंड नॉट सल्फर एटम, ठीक है। क्लियर गाइस? यूसुफ, हाफिजा एंड पार्कर, Yes, sir. ठीक है। हेलो प्लीज सेंड द आंसर फॉर दिस। HG वाले का तो आंसर भेजें। इरम टेल मी। So Hg का oxidation number क्या क्या क्या? Hg का oxidation number ओह, Hg का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, +1। मरकरी पहले आएगा यूसुफ, मरकरी पहले है ना, पहले कैटायन को नेम करते हैं, देन वी नेम द एनायन, ठीक है। इरम ये चीज चल, ठीक, इसी में हमको बताना था एक चीज, देखिए क्लियर गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू सी इफ आई हैव NaCl, जब हमारे पास NaCl होता है, सोडियम क्या है, कैटायन है एनायन है? व्हाट इज सोडियम, कैटायन और एनायन? हाँ गाइस, कैटायन। If you have MgCl2, then Mg is what, cation or anion? Cation once again, right? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, see here again, mercury is a cation and then the rest of this particular complex it is an anion। दिख रहा है आप लोगों को? जब आपके पास पुराना केस था यहाँ पे, ये देखिए, when you had this COCl, this whole thing was cation। I'm not only talking about the central metal atom। Central metal atom तो हमेशा ही cation के केस में रहेगा in the state of positive oxidation state, but I'm talking about the complex ion। This inside the square bracket, this whole thing is what it is having a positive charge। It is having a positive charge। वो आपको ऐसे पता भी लग जाएगा, cobalt had +3 और Cl2 था, so this was 2 negative, so overall it was +1, correct? So you can see that it is what, it is a cation। तो जब आपके पास cation होता है ना, तो कैटायन को हमने पहले नेम किया, नेम द कैटायन फर्स्ट एंड देन द एनायन क्लोराइड। इस केस में मरकरी इज माय कैटायन, सो आई विल स्टार्ट विद मरकरी, ठीक है, आई विल स्टार्ट विद मरकरी। नाउ इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू आल्सो राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मरकरी इन दिस केस, जो कि काउंटर आयन है। व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज मरकरी कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट, इट इज फ्रॉम द डी ब्लॉक। If I talk about oxidation state of K, it will be always +1,
Mg की अगर हम बात करें, it will be always +2. If I talk about aluminium, it will be always +3. So if these things are present in the counter ions, then I don't have to specify what is the oxidation state. But if you have anything such as Hg, or if you have something else, for example, you can have Pt or Pd, something like that, counter ion में, it is a good practice that you can write 1 here. You don't have to write, ऐसा तो जरूरी नहीं है बिल्कुल. It's a good practice to write the oxidation state explicitly for the transition metal atoms. Now, when we start writing the name of the complex ion, I will start with obviously the ligands. The ligand is what? Tetra. Obviously, there will be a space. यहाँ पे space होगा, ठीक है ना? Mercury. Then here we have tetra. Tetra के बाद आपके पास the ligand that we are having is thiocyanate, है ना? Thiocyanate -S. Now, my central metal atom is cobalt. But because my complex ion is anion, ये हमारा anion है, so in the case of anion, the central metal atom is named with the end of 8. इसको हम cobalt नहीं लिख के लिखते हैं cobaltate. क्या लिखते हैं इसको? Cobaltate. And the oxidation state you must have found as this will be how much? 3 हो जाएगा ना, ये -4 और ये +1, which will be equal, ये आपके पास x, so x will be equal to +3. All of you got this? Yes or no? ये समझ में आया सबको? हाँ जी. इरम, यूसुफ, पार्कर. ये पार्कर आपको समझ में आया? हाँ हाँ. Why did you write 1 after mercury? 1 because its oxidation state is 1. Is it necessary to write? It is not necessary. It is also just advisable when you are having the counter ion as a transition metal atom. ये तो हम बता रहे थे ना, because अगर आपके पास K होता तो K का पता है, K cannot have variable oxidation state, it can have only +1. If the counter ion was sodium, then it was always +1. There is no change. If the counter ion is Mg, there is no change. It will always be +2. But mercury can be +1, and it can also be +1 and +2 भी हो सकता है कभी-कभी. So it is a good thing. I will say it is just recommended that you can write +1 here. Otherwise, it is not necessary. If you write the name like this, also it is fine. हम बस एक चीज थी जो बता रहे थे आपको, ठीक है? Because I think there is a, शायद यही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, जहाँ पे उन्होंने मरकरी में 1 लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर आपके टीचर आपके लिए वगैरह में बिल्कुल एनसीईआरटी से चेक करते हैं तो फिर वहां पे मार्क्स काट सकते हैं. And it is only recommended if the counter ion is from a transition metal. ये कोबाल्टेट वाला समझ में आया सबको? All of you guys understood this कोबाल्टेट? हाँ जी. सॉरी इरम आपकी आवाज ना सही से नहीं आती है, आप ठीक करो माइक जरा अपना. Sir, can you explain this again? कोबाल्टेट वाला. ओके. हम एक लाइन लिखते हैं, लाइन से आपको समझ में आएगा. फॉर सेंट्रल मेटल एटम ऑफ anionic complex ion. For central metal atom of anionic complex ion, the name is ended with 8. ठीक है? तो अगर आपके पास कोबाल्ट है तो यू विल नॉट राइट कोबाल्ट, आप क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट. ओनली फॉर अनायनिक कॉम्प्लेक्स, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रल और कैटायन के केस में नहीं. क्या ये चीज आप लोग ध्यान रख पाएंगे? ये सर, नो, बीसन, पार्कर, इरम एंड यूसुफ. Yes, sir. है ना? कैसे पता चलेगा एनायन? काउंटर आयन आपका क्या होगा? लेफ्ट में, और कॉम्प्लेक्स आयन होगा राइट में. ठीक है? सो इफ इट इज इन राइट, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी एनायनिक. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ठीक है? कोबाल्टेट का क्या लिखेंगे? कोबाल्ट का लिखेंगे कोबाल्टेट. सिमिलरली इफ यू हैव लेट अस सपोज व्हाट यू हैव, फॉर एग्जांपल जिंक है आपके पास, मान लीजिए, तो जिंक नहीं लिख के क्या लिखेंगे? इफ इट वाज न्यूट्रल और कैटायनिक, I would have written zinc, but since it is present in an anionic complex, I will write zincate. ठीक है? Similarly, what else we can have? और क्या हो सकता है हमारे पास? हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास एल्यूमिनियम है, right? So you will not write aluminium, you will write aluminate. ठीक है? आपके पास अगर निकल है, if you have nickel, so you will not write nickel, you will write nickelate.
ओके, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इफ यू हैव एफ ई, बताइए एफ ई का क्या होता है? व्हाट इज एफ ई? Ferrite. एफ ई होता है आयरन, है ना? लेकिन Ferrite. हाँ हाँ हाँ, एफ ई आयरन, अरे भाई एफ ई क्या होता है हम पूछ रहे हैं, तो फेरेट, फेरेट की Iron. एफ ई होता है क्या? एफ ई होता है आयरन, बट उसको लिखेंगे क्या? इफ इट इज इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स विल नॉट राइट आयरन इट, विल राइट, जो इरम कह रही थी, इरम नहीं इसकी इजाद की है, इरम से पहले किसी को नहीं पता था कि फेरेट बोलते हैं क्या, इरम, है ना? ठीक है, एफ ई के लिए क्या लिखेंगे? फेरेट लिखेंगे। और बताइए एजी के लिए क्या लिखेंगे? हाँ जी इरम। Argentine. वेरी गुड, आर्जेंटेट। ये सारे नाम पता है किसने दिया है? किसने दिया है इरम, बताइए। Latin language. किसने, सॉरी? लैटिन? So Latin लैटिन से में नहीं ही आया है, लैटिन से नहीं आया है, ये आया रोमेनिया से। सच बता रहे हैं, आप लोग नहीं पता? ये सारे नाम एंड्रयू टेट ने दिए हैं, तभी तो लास्ट में से क्या आ रहा है, देखिए अर्जेंटेट, है ना? फिर और क्या होता है बताएं? कॉपर का क्या लिखेंगे? क्यूपरेट। और क्या लिखेंगे बताइए? और एक होता है एयू से, हाँ एसएन का भी होता है, एसएन, स्टैनेट ना, हाँ ठीक है, lithium. स्टैनेट में जो पता नहीं, इस पर देख लीजिए। और एयू का ऑरेट होता है, राइट? डू यू हैव एनीथिंग एल्स एकदम? और कुछ है? Sir, हाँ जी, कौन है सर? मरियम पार्कर जी, बताएं। lithium. हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, इधर डी ब्लॉक, आप रास्ता भटक गए थोड़ा। सर Okay, टाइटेनियम। sir. टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम का एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट ना, तो टाइटेनियम का टाइटेनिएट, टाइटम, टाइटेनियमेट, टाइटन, पता नहीं है। टाइटन, टाइटेनियम तो नहीं पता वो। टाइटेनियम का स्पेलिंग क्या है? टी आई टी एन, टाइटनेट होगा फिर, आई थिंक टाइटनेट। अभी पैक की बुक देखनी पड़ेगी जिस तरह से। हाँ, टाइटनेट ही है। टी आई अगर आ जाए आपके पास तो टाइटनेट हो जाएगा, ठीक है? तो इट इज नॉट फ्रॉम लैटिन, ये आपका सिंपल वाला ही टाइटनेट, जैसे एल्यूमिनेट है, ठीक है? चलिए लेट अस डू वन क्वेश्चन इस तरह से। क्या, ठीक है, चलिए जरा, इफ यू हैव लेट अस सपोज, सवाल है आपके पास K3 एंड देन वी हैव ZnOH, Zn क्या क्या कर दे, +3 हो चुका है यहाँ पे, और ठीक है। Sir, जी बताएं। sir, I have a doubt. जी टेल मी योर डाउट। Sir, in the previous question, the oxidation state of SCN is -4. Sir, I didn't understand how did that come. नहीं नहीं, -4 नहीं है वो, -1 है, इंटू 4 होके वो -4 हुआ। How, sir? बिकॉज SCN एग्जिस्ट एज SCN नेगेटिव, इस वजह से ऐसा आपको पता चल रहा ना। थायोसायानेटो आपने क्यों लिखा? अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, इफ इट वाज नॉट एनायनिक, तो आप ओ से तो एंड नहीं करते।
क्या ख्याल है पर? Yes, sir. ठीक है, इट एग्जिस्ट एज लाइक दिस। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस यू हैव टू रिमेंबर, वो हम आपको एक चार्ट है, लाइक यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दीज। ये ठीक है, नेगेटिव लिगेंड्स, तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा दैट कितना चार्ज है सब में। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ब्रोमीन, NO2 और या फिर ONO, सब में नेगेटिव है। SO4 अगर आ जाए आपके पास लिगेंड में, देन इट इज हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज। और उसी तरह ऑक्सीलेटो आता है आपका C2O4 के ऐसे करके लिखा जाता है, तो यहाँ पे इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। बट कैन बी ऑल्सो रिटन एज OX अगर आ गया आपके पास, देन इट इज हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली CO3 2 नेगेटिव है, हाँ देखिए CO3 2 नेगेटिव, तो CO3 इट इज एक्टिंग एज अ लिगेंड, देन आपको वहां पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने टाइम 2 नेगेटिव चार्ज मानना पड़ेगा। व्हाट दिस सिस्टम प्लीज टेल मी पार्कर। Yes, sir. ओके, आई मीन प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। आपका वीडियो तो ऑन था, क्या हो गया? लीजिए, हमने सवाल दिया था नहीं? हाँ जी, लीजिए सवाल लीजिए। ठीक है, अंडरस्टैंड योर मिस्टेक। अरे आप लोग को गलत लिखाया हुआ है क्या? टीचर्स ने आप लोगों को थोड़ा सा गलत दिखा दिया लगता है, लिगेंड्स के नाम। ठीक है चलिए, खैर वो भी समझ में आ रहा है। एंड देन यू हैविंग नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट सही नहीं लगा। यूसुफ, कैन यू प्लीज सेंड योर आंसर्स ऑन माय व्हाट्सएप? कैसे क्या किया है आपने? हाउ यू हैव कम टू दिस पर्टिकुलर आंसर? वो व्हाट्सएप में कर दें हमको, आई विल सी।
I've got one more answer. Each second. No, Parker, won't go to -7. तो Tell me. सर आप मेरा क्यों नहीं देखा? Sorry, सर आप मेरा क्यों नहीं देखा? नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? सर मैंने आपको सेंड किया है कब से? अच्छा, आपने सेंड किया है। अच्छा, गिव मी अ सेकंड. So the oxidation number is 1, right? करेक्ट. ठीक है, पोटेशियम के बाद स्पेस होगा इरम, है ना? ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट से ही नहीं है आपका. ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट कर लिया आपने? 3. देखिए इरम. Sir, I recalculated and I got 1. हाँ, वो सही है, आपका सही है. बस अब ये देखिए, आप लोग को हाइड्रोक्सो बोला हुआ है मैम ने, लेकिन मैम ने सिखाया हाइड्रोक्सो इरम, यस सर. लेकिन चेंज हो गया यार, हाइड्रोक्सिडो होगा. ओके, ठीक है. So I अब also hydrogen. हाँ, वही हमने देखा, आपने भी हाइड्रो. आपका एक और है, आपको ट्राई पोटेशियम लिखने की वहां पर जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू राइट पोटेशियम. ठीक है. अब मतलब हमको प्लीज कोई गाली नहीं देगा, हमने रूल्स वूल्स नहीं बनाए हैं यहाँ पे कि कहीं केतलिया को ट्राई बोलता है, कहीं नहीं बोलता है. ठीक है, वो मेरे रूल्स नहीं है. सो केमिस्ट्री का ये इनेट है कि अगर आपके पास, बताते क्या है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आपका टेस्ट एक्टिवेट करा दे पहले हम. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड. यूसुफ ने भेजा है टेट्राहाइड्रोक्सोसिंकेट 1. हाँ ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से सुनिए. देखिए, अगर आपके पास ऐसा होता है, व्हाट इज दिस, ट्राई नहीं होगा पार्कर, बाकी सब ठीक है. बाकी सब क्या ठीक है? हाइड्रोक्सिडो जिंकेट, हाँ ठीक है, बाकी सब ठीक है. एक सेकंड, व्हाट इज दिस, एमजीओ क्या होता है? एमजीओ क्या बोलते हैं आप लोग, बताइए जरा. बोलो रे भाई, एमजीओ क्या बोलते हैं? हाय हाय, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वेरी गुड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड. इफ आई वांट टू मेक एनी कंपाउंड विद सोडियम एंड ऑक्सीजन, क्या करते हैं? अगर आपको याद हो, सोडियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, इसको क्रेस इधर से क्रॉस, राइट, तो आपको मिलेगा सोडियम Na2O. इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस नोन एज? क्या बोलते हैं इसको? डाइसोडियम ऑक्साइड. डाइसोडियम ऑक्साइड. 10th क्लास में रहते तो सही आंसर कर लेते, 9th क्लास में रहते तो. अभी आप लोगों ने इसको सीखा है डाई ट्राई, तो डाई ट्राई में आप लोग फंस जा रहे हैं. ठीक है गाइस, लिसन, whenever we are naming the ionic molecules ना, तो ionic molecules में we don't say कि डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं किया जाता है. सिर्फ कहाँ यूज किया जाता है? कोवेलेंट के केस में यूज किया जाता है. किसमें यूज किया जाता है? कोवेलेंट. ठीक है, इन द केस ऑफ कोवेलेंट आई हैव टू, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ही, अगर मेरे पास इस तरह से ना AlCl3, तो क्या अलमिया है? आप देखिए, अलमिया मतलब आयरन ही होती है. क्या अलमिया है? कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है. एल्यूमिनियम क्या है? दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड. बट अगर हम CCl4 लिख दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? कार्बन टेट्राक्लोराइड. यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कभी नहीं होगा, इट विल बी एल्यूमिनियम क्लोराइड इटसेल्फ. बट एज सुन एज वी मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज गोइंग टू बी कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है, सो नाम से यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा दैट दिस इज गोइंग टू बी आयनिक. और व्हाई डू वी don't specify the number of ions? Because whenever we say aluminium chloride, we have to keep in mind, मतलब आपसे केमिस्ट्री और CBSE बाकी लोग, जो भी लोग केमिस्ट्री बना रहे थे, उनका इतना एक्सपेक्टेशन था कि जब कोई एल्यूमिनियम क्लोराइड बोल रहा है, तो उसके अंदर इतना तो दिमाग, मतलब इतनी उनके पास जानकारी होनी चाहिए कि एल्यूमिनियम और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है. तो इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो आपका फॉर्मूला आ जाएगा, दैट विल बी AlCl3. ये बात आपको समझ में आई? ठीक है ना? दिस इज द ओनली केस जब आपके पास कोवेलेंट और
आयनिक है। अब दिक्कत यहाँ पे क्यों होती है, जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ने जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन में दोनों टाइप के बॉन्डिंग्स है, कोवेलेंट भी है और आयनिक भी है। कोवेलेंट कहाँ पे है सर? कोवेलेंट इज बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स। हियर ऑक्सीजन, द OH नेगेटिव आयन, इट इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन टू जिंक, बट ऐसा वो डोनेट नहीं कर रहा है, इट इज गिविंग एंड वो शेयर भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना, वो कहीं ऐसे दे के भाग नहीं जा रहा है, इट इज गिविंग, यानी दो जो भी बॉन्ड है यहाँ पे बेसिकली होता है कि आपके पास OH है and then you have bond with zinc. Now each bond is made by 2 electrons. Coordinate के केस में this is a covalent bond, that means sharing of electron is taking place, but both of these electrons they belong to the oxygen of hydroxide, यानी OH नेगेटिव के ऑक्सीजन को बिलोंग करता है, जिंक का यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कोवेलेंट हो गया। एंड दी बॉन्डिंग बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में और ये जो K3 है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज आयनिक इन नेचर। के जो रहेगा, के कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा नहीं, के कैसे रहेगा, के पॉजिटिव और के पॉजिटिव, 3 के पॉजिटिव रहेंगे, उसके बाद बीच में यहाँ पे आपके पास जितने वाला आयन रहेगा, ठीक है। सो हियर पोटेशियम के लिए आपको लिखना नहीं है, पोटेशियम के लिए क्या लिखेंगे, सिर्फ पोटेशियम। उसके बाद क्या लिखेंगे, टेट्रा हाइड्रोक्सिडो, टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट। और जिंकेट में क्या आ जाएगा, इसका +3 और इसका -4, यहाँ पे x, तो x -4 + 3 इज इक्वल टू 0, तो x -1 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास x इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। तो जिंक के लिए जिंकेट कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ जी बताएं। पार्कर खास तौर से आपको, बाकी लोग का थोड़ा थोड़ा सही था, पार्कर का भी सही है। इरम, यूसुफ, आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, नहीं किसको समझ में, इरम को? हाँ बताएं। सर ये पोटेशियम के पास 3 वैलेंसी है राइट, +3 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सर हाँ, हमारे ने कहा था कि उसको ना बस एन में उसमें लिखना है, जैसे मैंने लिखा है। तुम लोग आधी आधी बात सुनते हो, क्या एंड में क्या लिखना? जो पोटेशियम का नंबर है वो लिखना है, जैसे यहाँ पे 3 है तो एन में 3 डालना है बस। या यहाँ 3 लिखना है? हाँ, ये किसने बोला था? टीचर ने बोला था। सॉरी, टीचर ने बोला था सर। मैम ने बोला था? आपने गलत सुना, आपने गलत सुना, हम जब कह रहे हैं आपने गलत सुना, ठीक है, ठीक है रम, ठीक है सर। ओके, आपने गलत सुना है, वो कोई बात नहीं है यहाँ पे। और सलाम, ये बताओ यार, ऐसे ऐसे आए 1-1 घंटा बाद बच्चा सब आया, वहां से चलेगा कुछ नहीं। ओके, चलिए ठीक है, आप सर हाँ जी बताएं यूसुफ। you wrote hydroxido, right? So is हाइड्रोक्सिडो, hydroxo wrong? हाइड्रोक्सो, हाउ डू यू अंडरस्टैंड इफ a ligand is neutral or not? याद करके, मरियम पार्कर, आई एम वेरी सैड टू से, याद करके आपको पता चलेगा कि कोई लिगेंड न्यूट्रल है या फिर अनायनिक है या फिर कैटायनिक है। वो लिस्ट हम आपको दे देंगे, आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। और टू आंसर यू यूसुफ, यार एनसीईआरटी में हाइड्रोक्सिडो है, ठीक है, और आप हमें बस 1 मिनट का टाइम दें, हम आपको सीबीएसई के मुताबिक बता दे रहे हैं, तो जो सीबीएसई मार्किंग स्कीम्स देती है उनके मुताबिक क्या है, ठीक है, जैसे कि मैं देख के बता देते हैं आप लोग को। मार्किंग स्कीम्स केमिस्ट्री 2022 का देख लें, 2022 में ठीक रहेगा ना? 1 सेकेंड, 2022 का पेपर सब पाए, चलो ठीक है, आंसर्स में देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग तब तक कोई एक सवाल करें, आप लोग क्यों बैठे रहेंगे, सवाल कीजिए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum sir. जी, why are you so late? Sorry sir, I was sick today. Sorry, you,
आज थोड़ा You बीमार were था, सर। sleeping? No, sir, आज बीमार था इसलिए। I can't even understand what you are trying to say. Sir, I'm a bit sick today, so I Acha, you are came a sick bit today. late. Acha, No, yes, fine. sir. Take care, take care. Why then? Yes, sir, I think so, sir, because it's actually happened Friday. क्या कहता हूँ, सुबह उठा तो वो दर्द हो रहा था बदन में, थोड़ा बीमार लग रहा था। I'm okay now, mostly. अच्छा यार, okay no. ठीक है। Mostly ठीक हूँ, सिर्फ थोड़ा बीमार लग रहा है। ठीक है, ख्याल रखिए, बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं अभी तो। Yes, sir. Hello, sir. Tell me. Oh, nothing, sir. अच्छा, आपको लगा हम भाग गए क्या? I'm here only. I've given the question, no? That's why I'm silent. I'm also looking for things actually. After your answer, let me just see. What was the compound? CrNH3. ठीक है, स्टार्ट तो सही किया आपने। जी, ठीक है। अब क्रोमियम का स्पेलिंग गलत है। आई थिंक दैट इज जस्ट अ टाइपो, आई होप सो। क्रोमियम, इट हैज CHR. ठीक है, और जस्ट इग्नोर वॉट एवर आई एम राइटिंग यहाँ पे जो हम पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? जस्ट इग्नोर दिस। हम देख रहे हैं कि क्लोरिडो, आई मीन CBSE इट रिकमेंड्स क्लोरिडो वगैरह या फिर हाइड्रोक्सिडो वगैरह, हाइड्रोक्सो क्लोरो वगैरह चलेगा। तो क्लोरिडो तो आई होप यू कैन सी फ्रॉम वन ऑफ द आंसर। आप बोलिएगा सर सवाल कौन सा था, सवाल भी हम काउंट कर लेते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर व्हाट? क्वेश्चन नंबर 32। Question number 32, and the paper is 56/3. Hmm, 22, ये वाला सवाल किससे है? 56/2।
यूसुफ का आंसर आया सर। शुड नहीं, आपको कोई सवाल नहीं करना है, यू जस्ट नीड, बस हो गया। हम एक दो चीज देख रहे हैं ना अभी इस वजह से। आई थिंक दैट इज करेक्ट, यस यूसुफ। आई जस्ट सीइंग दिस, ऊपर ऊपर से देखा हमने, एक बार हम उसको सही से चेक कर लें, बट इट्स फाइन। With 32. ये कौन सा पेपर का है? दिस इज फिजिक्स 1। else do we have 4? So you can see there is at least one question in all of these paper. ठीक है, चलिए इसकी कहानी बताते हैं। कहाँ गई इरम? इरम आर यू देयर? इरम, यूसुफ वगैरह जिलों को टीचर ने क्लोरो लिखाया हुआ है, ठीक है, खासतौर से देख लीजिए आप। क्लोरिडो, दिस इज फ्रॉम सीबीएसई का मार्किंग स्कीम ऑफ दिस ईयर ओनली, ठीक है। एक सवाल था, आई होप आपको इतना मेरे ऊपर विश्वास है कि हम ऐसे हवा से चीजें निकाल के नहीं लाए हैं, है ना। ऑल्सो यू कैन सी ये आंसर्स हैं, दिस आर नॉट क्वेश्चंस, दिस आर आंसर्स। पेंटा अमीन क्लोरिडो, ठीक है। और उसके बाद देखिए टेट्रा अमीन क्लोरिडो, ठीक है। डाई क्लोरिडो। तो आई होप आपको इतना कम से कम समझ में आ गया कि अगर आप भले ही आप हाफ ईयरली में लिख लीजिए, आपकी यूनिट टेस्ट में हाइड्रोक्सो वगैरह लिख लीजिए, लेकिन अगर आपको लिखना है बोर्ड्स में तो आपके पास चॉइस नहीं है। ये भी यहाँ पे आपके पास चॉइस हो कि क्लोरो और क्लोरिडो दोनों ही मार्क्स मैम मान ले, लेकिन बोर्ड के टाइम में तो आपको क्लोरिडो, हाइड्रोक्सिडो, यही सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड टू नेम दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इट विल बी स्टार्टिंग विद द नेम्स ऑफ ligand. This is amine, this is aqua, and this is, वो तो क्लोराइड बाद में कर लेंगे इसको। ये 0 है, this is also 0, and this is -1 into 3 which will be equal to, so x minus 3 is equal to 0, x हो जाएगा आपके पास +3। so the oxidation state of chromium is going to be +3। अब नाम लिख लें इनका, तो I have tri, तो हो जाएगा tri, AMMINE। Also according, अच्छा, जनरली जो आपके पास लिगेंड्स होते हैं ना, जनरली द लिगेंड्स आर आल्सो इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ओनली, ठीक है। आप देखिएगा, इस चीज को गौर कीजिएगा। देखिए अमीन है यहाँ पे, उसी तरह से जब हम लोगों ने क्लोरीन वाला किया था, सो सी नहीं, इसमें उल्टा था, इसमें उल्टा था, ये हमने बनाया था इस वजह से, ठीक है। तो ट्राई अमीन एंड देन यू विल हैव ट्राई एक्वा, नो स्पेस ऑब्वियसली, है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा। ट्राई aqua, then without space chromium, not chromate because it is what, ये भी cationic है, chromate वगैरह anionic में आता है। chromium 1 2 3 and then with a space we will write chloride, right, chloride, ठीक है। जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, that is another thing which is going from name to the complex, ठीक है। Let me give you an example. Potassium, जैसा आपके पास है, पोटेशियम, ट्राई ऑक्सलेटो, एल्यूमिनेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, और एल्यूमिनेट में आपको दिया हुआ 3 1 2 3, ठीक है। इस तरह से एल्यूमिनियम का 3 होता है वैसे तो 1 2 3। सो हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर फॉर दिस? तो सबसे पहले यू विल राइट द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले हम लोग करेंगे, पोटेशियम के बारे में हम लोग कुछ नहीं देखेंगे अभी, ठीक है गाइस, सी हियर। सो आपके पास आ गया ट्राईएक्सिलेटो एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम आ गया आपके पास, और ट्राईएक्सिलेटो मतलब C2O4 होगा कितनी बार? 3 दफा, ठीक है गाइस। नाउ what is the oxidation, what is the charge on oxalate? It is -2,
ठीक है, ऑक्सीडेट का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, another carbon bonded with ऐसे O नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, इट इज हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज। नाउ प्लीज सी बहुत टाइम है अभी यूसुफ, -2 इंटू 3 करेंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा -6। एल्यूमिनियम का क्या चार्ज दिया हुआ बताएं जरा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम गिवन, एल्यूमिनियम कितना दिया हुआ है +3, वेरी गुड। तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का क्या आ जाएगा, यहाँ पे -6 और यहाँ पे +3, तो दिस complete coordination sphere will have what charge, how much charge will be there for this coordination sphere, अरे बोलो भाई, +3 -6 दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया, -3। हाँ कितना हो जाएगा बताइए, -3 हो जाएगा ना, ठीक है, -3 होगा एकदम, कोई बात नहीं। अच्छा अब ध्यान से देखिए जरा, और साथ आपके पास एक बात सुनो, आपके पास एक बात सुनो, एक बात सुनो, यू हैव एन एलिमेंट ए जिसका वैलेंसी या फिर जिसके ऊपर चार्ज जो होता है 1 होता है, और आपके पास दूसरा एलिमेंट है बी जिसके ऊपर चार्ज जो आता है वो आता है -3, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 वैलेंसी हो जाएगी, है ना। अगर हम इसका कंपाउंड बनाए तो क्या मिलेगा आपको, A3B मिलेगा। अरे ये बात समझ में आई, हाँ है ना पार्कर, Yes, sir. यूसुफ पार्कर, समझ में आया सबको ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पोटेशियम है आपके पास और उसके बाद आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स, सही है। पोटेशियम के पास इन जनरल क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं पता फिर आपको याद करना पड़ेगा पोटेशियम कौन से ग्रुप में आता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1। और ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आया है इस पे हमको मिला है कितना वैलेंस, इसमें चार्ज मिला है -3, सो इट्स वैलेंसी विल बी 3। आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा K3, इधर आ गया आपके पास Al, ये तो हमने निकाला था ना, AlC2O4 होल थ्राइस, इस तरह से, दिस इज योर कंपाउंड। गॉट इट ऑल ऑफ यू गाइस, Yes, बात समझ में आई, यूसुफ इरम समझ में आया सबको, Yes. चलिए ठीक है। तो एक जो सवाल है, सवाल करते हैं फिर। देते कोई आपको, this is from NCERT। वही करना है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल विल ओनली फोकस ऑन दी कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन में हम लोग क्या करेंगे, चीजों को मतलब जो भी लिगेंड्स होकर उनको बैठाएंगे, दे वुड ऑलरेडी हैव गिवन अस दी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, हमको लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, सबको कंबाइन करके वी विल गेट दी ऑक्सीडेशन स्टेट और दी चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, और उसके बाद फिर हम लोग वही पुराना वाला क्लास 9 से जो क्रिस क्रॉस करते आ रहे हैं उसी मेथड को फॉलो कर लेंगे।
You all will send the answer on my WhatsApp, okay? I want to see how you have done it. यूसुफ ने आंसर भेजा है। वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कहाँ किया आपने यूसुफ? टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3, ठीक है। तो 3 और So this is the method they taught in school. अच्छा अच्छा अच्छा, आपने एक्स को फाइंड, अच्छा अच्छा वैसे आपने एक्स को फाइंड किया, हाँ ठीक है चलो, ये भी सही। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास कुछ ये रहता,
अब कैसे होता है बताइए जरा यूसुफ, ये वाला कैसे करते हैं? करेक्ट है, यस, फिर वेरी गुड, करेक्ट। सही है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ये करना है दैट कोबाल्ट आएगा, उसके बाद फिर आपको अमीन लिखना चाहिए था, उसके बाद आपको एक्वा लिखना चाहिए था, उसके बाद आपको सीएल लिखना चाहिए था पार्कर, है ना? और तो कुछ ये नहीं है। अमीन एक्वा क्लोरो, अमीन एक्वा क्लोरो, हाँ ठीक है। यूसुफ आपका कैसे? अमीन एक्वा क्लोरो, ठीक है। पार्कर यू अंडरस्टूड ना दैट व्हेन यू आर राइटिंग द स्ट्रक्चर, तो जो आपको कंपाउंड का फॉर्मूला आप अगर लिख रहे हैं, देयर यू हैव टू राइट, पहले कोबाल्ट आएगा, ठीक है, सबने कर लिया तो हम आपको आंसर बता देते हैं इसका। दिस विल बी कोबाल्ट, फिर उसके बाद आएगा अमीन विच इज NH3, एंड हाउ मेनी 4 NH3, फिर उसके बाद आएगा एक्वा दैट इज H2। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखना है, ठीक है ना? देन यू विल हैव Cl, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास Cl, और इसके बाद 2 आ जाएगा। ट्राई दिस वन ना, ये ट्राई करें जरा। यूसुफ, इज देयर एनी चेंज इन द आंसर? आपके आंसर में आंसर भेजिए इसका। इतना तो आपको पता होगा ना, वट एवर विल बी द डिफरेंस, इट विल बी बिकॉज ऑफ सल्फेट, है ना? क्या आंसर आएगा? सॉरी, CO, NH3, 4, H2O, Cl and S2 comes in that. S2 नहीं होगा रे भाई। सल्फेट क्या होता है? सल्फेट क्या होता है? जैसे व्हाट इज दिस Mg, अगर हम लिखें इस तरह से MgSO4, क्या पढ़ते हैं इसको बताइए जरा यूसुफ। MgSO4 जी, क्या पढ़ते हैं? Magnesium sulfate. हाँ, तो सल्फेट क्या है यहाँ पे? व्हाट इज सल्फेट हियर? SO4 इज अ सल्फेट, राइट? Yes, sir. हाँ, फिर बाकी लोग करें। इरम, यूसुफ, हाँ इरम यूसुफ कर रहे हैं। अरसलान, आपकी तबीयत उतनी ठीक नहीं, इस वजह से हम बहुत ज्यादा आपको नहीं ये कर रहे हैं। आप प्लीज लेक्चर देख लीजिएगा ये वाला। आप इससे पहले वाले लेक्चर में थे? यस अरसलान। नो सर। सो यू हैव टू वॉच दैट लेक्चर आल्सो, है ना? पुराना वाला ओके लेक्चर सर। देखा आपने? पुराना वाला, हाँ शायद मैंने देख लिया था। कहाँ तक आपका नोट्स कंप्लीट है बताइए जरा। So I didn't take notes that much, so I just wrote some Why? basic stuff down. Yes sir, I'll do it sir. मैंने When previous will you आपने do जो it? स्टार्टिंग में नोट्स किया था, हाँ वो मैंने किया था। क्या था नोट्स बताएंगे जरा। आपने जो ओरिजिनली स्टार्टिंग में किया था ना, yes please sir, how it is.
हुआ नहीं इरम, ये तो आप लोगों ने किया हुआ था, बस जो भी दिक्कत आएगी आपको सल्फेट के साथ आएगी। हाँ जी, पार्कर एंड इरम और यूसुफ, ये तो Yes, सेम चीज sir. रहेगा ना, CO वही रहेगा, NH3 होल 4 भी वही रहेगा, वाटर भी वही रहेगा और Cl भी वही रहेगा, राइट। अब आपको ये पता करना है ये SO4 जो होगा ये कितना रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। जैसे आपके पास इफ यू हैव एल्यूमिनियम ना, तो एल्यूमिनियम में क्या होता है ना, Al2SO4 होल थ्राइस, दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो उसी तरह आपको बताना है कि SO4 में कितना आएगा यहाँ पे। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए SO4 पे चार्ज क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक ना ऐसे सवालों में अरसलान थोड़ा सा जो आपके स्कूल में पढ़ाया वो मामला थोड़ा अटक सकता है यहाँ पे, है ना। सी SO4 पे जो चार्ज होता है, SO4 हैज 2 नेगेटिव चार्ज। ओके, तो आपको या तो आप ये कीजिए जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा था ना इस तरह से, ये आपका हो जाएगा दिस विल बी +3, है ना। NH3 के लिए हो जाएगा 0, वाटर के लिए हो जाएगा 0, इसके लिए -1, और SO4 के लिए जैसा कि Cl के लिए आपने x लिखा है, यू शुड हैव, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2x, क्योंकि 2 चार्ज होते हैं। शायद आपको ऐसा करने से शायद आंसर आ जाए, 3 और 1 4, है ना। आपको x निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2, राइट। x विल बी इक्वल टू 1, हाँ, या तो आपको 2x लिखना पड़ेगा। बाकी अगर आप वैसे, हाँ, मेनली है कि आपको SO4 में पता होना चाहिए क्या चार्ज है इफ यू आर गोइंग लाइक दिस, और यहाँ पे SO4, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2। तो जब आपके पास इस तरह का केस आता था, फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास MgO बनाना रहता था आपको, तो Mg हैज अ वैलेंसी ऑफ 2, ऑक्सीजन हैज अ वैलेंसी ऑफ 2, तो इन दोनों का क्या ले देते, रेशियो क्या हो जाएगा, कट के 1:1। ठीक है, so similarly here also you'll cut this and you'll get 1:1। तो ये बस ऐसे ही हो जाएगा, दिस इज दी कंपाउंड, फिर कोई और चेंज करने की जरूरत नहीं। SO4 will be 1 SO4 will be countering the whole charge that is present on this particular complex। All of you got this, yes or no? ठीक है, चलिए, एंड एक बस हम आपको सवाल करा देते हैं जिसमें यू हैव 2 कॉम्प्लेक्सेस, this is also from your NCERT। कोई डाउट है, 2x वाला स्कूल में अगर देखिए, पार्कर कैन प्लीज, हाँ पार्कर, कोबाल्ट के लिए 3 लिख दें, +3। Yes, ठीक sir. है, NH3 के लिए 0 बिकॉज इट इज न्यूट्रल, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, वाटर के लिए भी 0, क्लोरीन के लिए -1 बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। ठीक है, एंड देन फॉर SO4 क्या करना होगा आपको, फॉर SO4 में जो वैलेंसी होती है उसकी 2 होती है बिकॉज चार्ज इज 2, तो इट इज हैविंग 2x चार्ज, मतलब एक जो भी आएगा आपके यहाँ पे हाउ मेनी x जो बताएगा ना, x इज नॉट अबाउट द चार्ज, x विल टेल यू हाउ मेनी SO4 इज प्रेजेंट। ठीक है पार्कर, Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 + -1 + 2x इज इक्वल टू 0, यानी ये जो पूरा है दिस इज नॉट हैविंग एनी चार्ज, कॉम्प्लेक्स प्लस दी काउंटर आयन। अब 3 - 1 हो जाएगा 2, अच्छा नहीं, यहाँ पे एक सेकेंड, इट विल बी -2 आई थिंक बिकॉज, हाँ -2 यहाँ पे, बिकॉज SO4 पे -2 चार्ज होता है ना, -2, x तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दिस विल बी -2x, and then you will be getting 2 - 2x is equal to 0, तो 2 is equal to 2x, तो x is equal to क्या आ जाएगा, because x is equal to 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, बट आप ये वाला फॉर्मूला, ये वाला रखिए, ज्यादा सहूलत होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस करने में आप लोग मिस्टेक कर देंगे। ओके, Yes, sir. ठीक है, ये आपको समझ में आया ना ये वाला मेथड। Yes, sir. ठीक है, और दूसरी चीज, एक और चीज हम आपको बता दें, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी कमिंग फॉर ओनली 1 मार्क्स। ठीक है, तो आप क्या प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर व्हेन यू आर राइटिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, दिस आंसर दैट यू आर राइटिंग दिस शुड बी करेक्ट।
सारी चीजें यहाँ पे सही होनी चाहिए, बस वही देखेंगे वो। दे आर नॉट गोइंग टू लुक एट द प्रोसेस दैट यू आर यूजिंग। आपने ऐसे किसी से झांक के भी देख लिया ना बगल से आंसर ये है, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मतलब हम झांकने नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बस आपसे कि सॉरी सर आप क्यों झांकिएगा, आपका किसी और ने झांक के अगर देख लिया और उसका सही आंसर आ गया तब भी उसका सही रहे, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट दीज केसेस जहां पे आपके पास यू हैव बोथ ऑफ दी cation एंड anion, बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लेक्सेस। इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट x और इसका भी x ले लेते हैं। NH3 के लिए 0 और Cn के लिए क्या हो जाएगा -1 into 2। And overall, both of these complexes, it is a compound, it is one compound only, it is not having any charges. तो इस केस में आपके पास oxidation state of Ag will be x plus 0 plus x minus 2 will be equal to 0. 2x minus 2 will be equal to 0. तो x is equal to क्या आ जाएगा आपके पास 2x is equal to 2, तो x is equal to 1, ठीक है। So we have got the oxidation state। बाकी फिर आपको सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा, दिस इज योर कैटायन, तो कैटायन में लिगेंड्स लिखेंगे, तो लिगेंड इज डाइअमीन और दिस इज अ कैटायनिक, तो डाइअमीन के बाद सीधा क्या आ जाएगा सिल्वर एंड यू विल राइट 1। नाउ फॉर द एनायनिक थिंग यू हैव टू गिव अ स्पेस, राइट, कैटायन और एनायन के बीच में स्पेस होना चाहिए। सो वी विल स्टार्ट विद दिस इज CN। CN क्या आता है सायानिडो। अच्छा आप लोगों को ये लिखाया होगा ना सियानो, सियानो नहीं लिखना है आपने, आपने लिखना है बोर्ड्स में तो एटलीस्ट सायानीडो लिखना है, सायानीडो। कितना डाई ना, डाई भूल गए हम, माय बैड गाइस, डाई सायानीडो, डाई डाई सायानीडो। Ag के लिए क्या लिख लेंगे आप, दिस इज नाउ एनायनिक, राइट, दिस इज एनायनिक, यहाँ पे आ जाएगा आर्जेंटेट, आर्जेंटेट 1। समझ में आया आपको यूसुफ, अरसलान, इरम एंड पाकर? Yes, sir. Yes. Please write this down. इरम टेल मी। सर जो मैंने आपको टेस्ट पेपर सेंड किया ना मेरा, उसमें हाँ सेकंड रॉन्ग आ हाँ, तो मुझे रुको समझ रुको, नहीं अरे 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 रुको तो भाई, वो निकालने तो दो। ऐसे मेरा हम कंप्यूटर है, आपने बोला और मेरे दिमाग में आ गया आपका जो एग्जाम में आया था, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कब भेजा था आपने? आया 16 सितंबर। 13 सितंबर वाला ना? 13 सितंबर ना जी इरम? 16 सितंबर। नहीं नहीं, आपका टेस्ट डेट, हाँ ठीक है ठीक। सेकंड वाला हाँ। आपका क्या गलत हुआ है वो आपको समझ में नहीं आ रहा। सोडियम ट्राई ऑक्सलेटो लिखा ना, उसमें क्या लिखा है? सोडियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट 3, ठीक है। तो सोडियम का तो छोड़ दीजिए, ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट कैसा होगा Fe, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखिएगा आप C2O4 होल थ्राइस लिखिएगा ना, कि नहीं लिखिएगा? सही। ठीक है। अब उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया -6, ठीक है। तो Na आता Na3 होता है, Na3 तो आपने सही लिखा है, ये तो पक्का आपने छाप के लिखा है किसी से, है ना इरम? नहीं सर, मैं नहीं चाहती। अच्छा आप नहीं छापते। ये तो हमने शायद ना आपको बताया भी था, क्या गलती की है आपने। ट्राई ऑक्सलेटो मींस बोला, जवाब तो दिया था हमने, उसमें तो आपने थम्स अप कर दिया, ओके, उसमें समझ में नहीं आया था। नहीं। फिर तो उसी टाइम पूछा, तो वही चीज तो बोला ना, ट्राई ऑक्सलेटो में तो C2O4 होल थ्राइस। अब 3 को तो हम व्हाट्सएप चैट में से सब्सक्रिप्ट में नहीं ला सकते ना, अब उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। और बाकी सब आपको ठीक हुआ है, लेकिन बात नहीं। चलिए, तो पार्कर आप बस एक काम करेंगी, that you will take a screenshot for this,
दिस होल थिंग। अब देखिए यहाँ पे यू हैव नेगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, एंड दीस आर ऑल न्यूट्रल। ये सारे के सारे क्या है, ऑल ऑफ दीज आर न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। आपने बस एक काम ये करना है कि इसको काट देना है, ये मत लिखिएगा आप, ठीक है ना, दिस इज एक्स्ट्रा। फिर आप कंफ्यूज, वो हम इस वजह से बता रहे हैं बिकॉज NO2 पॉजिटिव होगा या फिर आपके पास NO2 नेगेटिव, ये देखिए NO2 नेगेटिव में भी है, राइट। सो आप फिर कंफ्यूज होइएगा। इन योर NCERT और बाकी जो CBSE के जितने एग्जाम्स है उसमें हमेशा जब NO2 लिया गया है इट इज ऑलवेज NO2 नेगेटिव, अनायनिक लिगेंड, ठीक है ना। इसको काट देंगे और करनी है थायोसायानेटो तो है यहाँ पे, थायोसायानेटो, इसमें आपने ऐड कर देना है इस तरह से -S, ठीक है। और आइसो